So dear students, welcome back. आज के लेक्चर में हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है अबाउट द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल. सो अभी तक हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोटेशनल स्पेक्ट्रम. हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम को हमने डिटेल में डिस्कस किया. इसके बाद हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने डिटेल में डिस्कस किया और डिफरेंट फीचर्स पर्टेनिंग टू द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, या वो रिजिड हो सकता है, नॉन रिजिड हो सकता है, उनके बारे में डिस्कस किया. देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी डिस्कस किया और देखा कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या फीचर चाहिए और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि जब हम रोटेशनल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंबाइन करते हैं तो क्या स्पेक्ट्रम हमारे पास मिलेंगे और इस स्पेक्ट्रम से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सो वी कैन से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर. Now we will look for the combination of Raman and rotational spectroscopy. अब रमन के साथ हम रोटेशनल को कंबाइन कर देंगे और देखेंगे उसका स्पेक्ट्रम क्या बनता है. और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द लीनियर मॉलिक्यूल. सो वी विल स्टार्ट द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ ए लीनियर मॉलिक्यूल. देन आफ्टर दैट we will look for the symmetric top and our spherical molecules, or I can say the rotational Raman spectra of spherical and symmetrical molecule. Now let's start with the rotational spectrum of rotational energy level of a linear molecule. तो जब हमने rotational spectroscopy डिस्कस किया था वहां पे हमने ऑलरेडी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स निकाला था एक लीनियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए. सो आई हैव दैट इक्वेशन. सो रोटेशनल, आई कैन राइट हियर इज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए linear molecule. So already I have discussed about the rotational energy level and I have got an equation where the epsilon we are writing here, इसको हम इसलिए epsilon लिख रहे हैं because we are expressing these in terms of wave number. The rotational energy of a linear molecule will be equal to, that is epsilon j is equal to bj j plus 1 minus dj square into j plus 1 whole square centimeter inverse. So this is the equation for a linear molecule for its rotational energy level, and we know that j here is the rotational quantum number and the value of j can be 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Now when we combine this rotational spectra with the रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब हम रोटेशनल को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ कंबाइन करते हैं, then the second term here, that is this is the d term, which we also known as centrifugal distortion. So the precision of the measurement does not normally warrant the retention of the term involving d. तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारी ये जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन वाले टर्म का उतना ज्यादा मीनिंग यहाँ पे नहीं रहते हैं. Therefore, what we can do now, हम क्या करते हैं, हम टाइम बीइंग के लिए इस सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन वाले टर्म को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. Now let's ignore the centrifugal distortion term because we know that the value of d term is very, very small. But it can be influenceable at higher value of j. Therefore, now I will discard this d, that is the centrifugal distortion term, and then if I am ignoring this term, I will get a new equation, that is my epsilon j is equal to b j into j plus 1, that is centimeter inverse. I am expressing this in terms of wave number. So I have an equation for the rotational energy of a linear molecule. That equation is my energy level
is equal to bj into j plus 1, in which we all know that the j is the rotational quantum number, the value of which can be varies from 0, 1, 2, 3, and so on, and b is our rotational constant. So now important here is, now let's look for the selection rule for the rotational Raman spectra. Now this is very important. You should keep this thing in your mind, that the selection rule for rotational Raman spectroscopy. So the selection rule for your rotational Raman spectroscopy is that delta J is equal to, it can be either 0 or it can be plus minus 2. So this is very important, क्योंकि आगे आपके जितने भी रोटेशनल ट्रांसैक्शन, रमन ट्रांसैक्शन होंगे, वो सिलेक्शन रूल्स को ही फॉलो करेंगे. So now if we compare this selection rule with the rotational spectroscopy selection rule, we know that in case of rotational spectroscopy, I am just talking about only the rotational spectroscopy. So in case of rotational spectroscopy, we know that the selection rule is delta J is equal to plus minus 1. So here I can say that this selection rule for rotational Raman spectroscopy is in contrast to what we have the selection rule for only rotational spectroscopy, that is delta J is equal to plus minus 1. Now, why these selection rules are differing? Let's revisit the introduction part of our Raman spectroscopy, in which we have said that if I only talk about the rotational spectroscopy, we can say that the transaction can take place from J is equal to 0 to J is equal to 1 or 1 to 2. It means there is only one unit change in the rotational quantum number. So this is for the rotational spectroscopy. However, in case of Raman spectroscopy, we have already discussed that our transaction can occur from, for example, let me take, this is the initial energy level, this is the final energy level, and I can say this is the virtual energy level. So we have said that the transaction can take place from this initial state to any virtual state, and after that this will come back to a final state, and there will be some sort of energy difference between the initial and the final state. So due to this kind of transaction, the selection rule differs from rotational spectroscopy. And for rotational Raman spectroscopy, I can say we have a new selection rule in which the delta J is either can be 0 or it can be plus minus 1. So here, if we consider J is equal to 0, then it means there will be no transaction. There will be no transaction. अब आप अगर J 0 कंसीडर करेंगे, 0 मींस उसी स्टेट पे ही रहेंगे, तो ये आपका बिल्कुल भी कोई अगर ट्रांसैक्शन नहीं होगा, तो this it will corresponds to Rayleigh scattering. Now the important point here is that now we will consider the selection rule, that is delta J is equal to plus minus 2, कि अब हमारा जो ट्रांसैक्शन होगा वो delta J is equal to plus minus 2 के according होंगे. Now let's see the transaction according to the selection rule, that is delta J is equal to plus minus 1. It means if I have to find the energy levels, or I can say if I have to find the different energy levels by considering this selection rule, that is delta J is equal to plus minus 2, the energy difference I can write it is the delta epsilon is equal to E J plus 2 minus E J. Now what I am considering is, I am considering here only J is equal to plus 2. प्लस 2 का मतलब है कि आपका क्या हो रहा है, पहले हमारा क्या होता था, +1 से सिर्फ +2 में ही जा सकता था. Then now if these are the rotational energy levels, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, it means that your transaction is taking place from 0 to 2. 2 minus 0 is 2,
then 1 to 3, 3 minus 1 is 2, and that in this way your transaction is now happening in case of rotational Raman spectroscopy. So I am considering here only +2. -2 means that your molecule can now return back from 2 to 0. So this is the reverse. So let's fix our discussion only to delta is equal to +2. It means that my transaction is occurring from J state to J plus 2 state. That's why our selection rule says that delta J change should be 2. It means if I am in the initial state in the J state, then now I am undergoing transaction. अगर मैं transaction करता हूँ तो वो J is equal to 2 J plus 2 state में चला जाएंगे. Now in case of your Raman rotational spectroscopy, the quantum number is changing by 2 units. Now, if I have to find this energy difference, now what I will do is I will substitute the value of this J2 into our above equation, that is BJJ plus 1. So I have to subtract from the J plus 2 state minus J state. So I will write, I have the equation B J into J plus 1. Now what I will do, I will substitute this J plus 2 value and J value in this equation. Then I can write it is B J in place of J. J की जगह मैं लिखूंगा J plus 2. So I will write J plus 2 into इस J के जगह भी मैं J plus 2 लिखूंगा. ये हायर अपर एनर्जी स्टेट है, अपर टू लोअर हमें माइनस करना है. देन अगर मैं इस J के जगह J plus 2 लिखूं तो मेरे पास J plus 2 plus 1 it will become J plus 3. मेरे पास ये J plus 3 होगा. इसमें से मुझे माइनस करना है वही ये हमारा इनिशियल स्टेट है, इसी को दैट इज BJJ into J plus 1. तो ये मेरा क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट है. तो ये मेरा क्या है, अपर एनर्जी लेवल है. अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल मुझे करना है. और अपर लेवल एनर्जी अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन वुड मेरा J plus 2 स्टेट होगा और लोअर J स्टेट होंगे. अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, व्हाट आई विल डू नाउ, मैं इसमें से B को कॉमन निकालता हूं और इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करता हूं. J into J it will be J square plus J into 3 it will be 3J plus 2 into J it will be 2J, and then I have 2 into 3 is 6. Now this side I have this term. Now here what I will do is B I have taken common, B मैंने common दिया है. J into J is J square minus J square minus J into 1 it will be minus J. So जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मेरे पास ये इक्वेशन आ गया. नाउ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्लस J स्क्वायर माइनस J स्क्वायर इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ. अब मेरे पास बचा क्या, B ब्रैकेट में मेरे पास बचा 3J plus 2J इट विल बी कितना हुआ, 3 2 5 5, यहाँ पे एक माइनस 1J है, इट विल बी योर 4J plus 6. मेरे पास ये इक्वेशन आते हैं. अब मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं जो भी कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 में कॉमन निकाल सकता हूँ. 2 में कॉमन निकालता हूँ, 2B ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 2 2 4 2J plus 2 3 6 that is 2J plus 3. Now the energy of the transaction, that is my delta epsilon, is equal to 2B into 2J plus 3 centimeter inverse. Now I have already put epsilon here, means the equation is in the form of wave number, where again this J is our rotational quantum number and the value of J will be 0 1 2 3 4 and so on. So it can have any value starting from 0 and then it can go further. Now अब हमारे पास आ गया जो ट्रांसैक्शन के लिए जो हमारे पास एनर्जी के इक्वेशन चाहिए, जब हमारा मॉलिक्यूल ट्रांसैक्शन करते हैं लोअर टू हायर एनर्जी, उसके लिए एनर्जी के लिए दैट इज दिस एनर्जी. अब ये कौन सा एनर्जी है, अभी मैंने आपको बताया था, इफ दिस इज माय इनिशियल स्टेट, इफ दिस इज माय फाइनल स्टेट, एंड इन केस ऑफ रमन वी हैव ए वर्चुअल स्टेट. अब मेरे पास क्या था, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ट्रांसैक्शन करके वर्चुअल स्टेट में चला गया था और वर्चुअल स्टेट से ये मेरे पास फाइनल स्टेट में आ गए. अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल, दैट इज डेल्टा एप्सिलॉन. दिस एनर्जी इज इक्वल टू 2B into 2J plus 3. अब ये मेरा एनर्जी बता देगा कि ट्रांसैक्शन के लिए कितना एनर्जी मुझे चाहिए होगा. अब फर्दर आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास
हमने देखा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता था, मेरे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैक करता था, और यहाँ पे दो फेनोमेना हो सकता था, या ये जो आपकी स्केटर होंगे जब इस मॉलिक्यूल से, इसका एनर्जी क्या हो सकता था, इंक्रीज होंगे, या ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अपना एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे के इसका एनर्जी डिक्रीज होंगे। ये दो ऑप्शन था, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल इसी तरह जब आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे आके मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ अगर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, then if the energy of this scattering molecule is increased, then means we have anti stock लाइंस, हमारे पास एंटी स्टॉक लाइंस आएंगे अगर एनर्जी क्या होगा, इफ दिस एनर्जी विल इंक्रीज। उसी तरह अगर हमारा एनर्जी डिक्रीज होते हैं स्कैटर्ड लाइट का एज कंपेयर टू इंसिडेंट लाइट, देन वी विल गेट स्टॉक्स लेंथ। अब इन दोनों का क्या फ्यूचर है, स्टॉक लेंस हैज हायर फ्रीक्वेंसी, or I can say higher frequency, or the anti-stock lens will present a higher wave number किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू आवर exciting radiation, as compared to our exciting radiation means जो रेडिएशन हम इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। and in case of stock lens what will happen, it will get lower frequency, इसका frequency क्या होगा, कम होंगे, और I can say it will present a lower wave number as compared to our exciting radiation, or I can say the incident radiation। तो अगर हमारे एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होते हैं तो हमें एंटी स्टॉक लाइंस मिलेंगे यहाँ पे, और अगर हमारे एनर्जी स्ट्राइक करने के बाद कम होते हैं तो हमारे पास क्या मिलेंगे, स्टॉक लेंस मिलेंगे, जो कि हमारा एक्साइटिंग रेडिएशंस के लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेंगे। देन फाइनली द वेव नंबर ऑफ दिस कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लेंस। अब आपका मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में स्ट्राइक किया है, या ये हायर फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं या लोअर फ्रीक्वेंसी पे, हायर फ्रीक्वेंसी पे एंटी स्टॉक लेंस मिलेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे स्टॉक लेंस मिलेंगे। then the wave number corresponding to this spectral lens will be equal to mu bar is equal to mu bar ex। ex means the excitation light, जो कि हम इस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो कि मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, प्लस माइनस 2b into 2j plus 3. So the overall wave number of these spectral line will corresponds to, इनका wave number मैं निकाल सकता हूं कि कौन सा लाइन किस पोजीशन पे है, उसको मैंने म्यू बार लिखा। This mu bar is our, I can say, the wave number of spectral lines। spectral lines, जो भी spectral lines हमें मिलेंगे उसका ये wave number है। This mu bar excitation is the wave number of, ये मेरे पास wave number है किसके लिए, exciting radiation का wave number कितना है, और यहाँ पे मेरे पास दो टर्म है, एक मेरे पास प्लस है, एक मेरे पास माइनस है। नाउ दिस प्लस साइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये प्लस साइन मुझे बता देगा कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंटी स्टॉक lines। Plus sign means anti-stroke lens, because we know that this plus sign is higher as compared to the minus। So we already know, हमें पता है कि anti-stroke lens exciting radiation से right में होते हैं, और minus sign corresponds to Stokes lens। minus sign हमें बता देगा Stokes lens के बारे में। So finally I have an equation to determine the wave number of the spectral line of the rotational Raman spectra, in which mu bar, that is the wave number of the spectral line, is equal to mu bar excitation radiation, जो radiation हम excite कर रहे हैं उस पे हमारा ऐड होगा प्लस माइनस 2b
इंटू 2J प्लस 3। प्लस माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें दोनों स्टॉक लाइंस और एंटी स्टॉक लाइंस दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो प्लस हमारे एंटी स्टॉक लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस हमारे स्टॉक लाइंस को प्रेजेंट करेंगे। Now let's now draw the we can say the allowed transaction। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करके allowed transaction को दिखाएंगे और उसकी बेसिस पे हम स्पेक्ट्रम को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। Now let me draw the rotational energy level। तो ये मेरे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल है। फॉर एग्जाम्पल J is equal to 0, then I have J is equal to 1। और हमें पता है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में जैसे जैसे आप हायर लेवल की ओर जाते हैं, द गैप बिटवीन द रेस्पेक्टिव रोटेशनल एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। J is equal to then 3, then I have J is equal to 4। let me stop here। J is equal to 4। अब मेरे पास सिलेक्शन रूल है कि द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा J is equal to प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 1 नहीं है, प्लस माइनस 1 रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। यहाँ पे मेरे पास जो सिलेक्शन रूल है प्लस माइनस 2 है। इसका मतलब क्या है कि मेरा ट्रांसैक्शन 2 यूनिट से चेंज होगा। अगर मेरा मॉलिक्यूल J is equal to 0 स्टेट से ट्रांसैक्शन होंगे तो 1 में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट 2 लेवल में चले जाएंगे। इस अगर अब मैं 2 माइनस 0 करता हूं तो मेरा सिलेक्शन रूल फॉलो होगा, दैट इज डेल्टा J is equal to प्लस 2। दूसरा ट्रांसैक्शन मेरा हो सकता है 1 से सीधा 3 में जाएंगे, यहाँ पे ही मेरा सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है, डेल्टा J is equal to प्लस 2। इसी तरह मेरा 2 से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जा सकता है 4 में। तो ये मेरा ट्रांसैक्शन है व्हेन माय डेल्टा J is equal to प्लस 2। अब उसी तरह मेरे पास माइनस 2 भी है। माइनस 2 का मतलब है कि आपका J is equal to 2 स्टेट से J is equal to 0 स्टेट में चले आएंगे। 0 माइनस 2 इज माइनस 2। आपका J is equal to 3 से J is equal to 1 स्टेट में चले आएंगे एंड देन J is equal to 4 से J is equal to 2 स्टेट में चले जाएंगे। एंड दिस इज द ट्रांसैक्शन व्हेन माय डेल्टा J is equal to माइनस 2। So according to selection rule, my transaction can be either from 0 to 2, 1 to 3 and 2 to 4, and in the reverse transaction also it can be 2 to 0, 3 to 2 and 4 to 2। so इस तरह मेरा सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या है, ट्रांसैक्शंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा रमन शिफ्ट कितना होगा? रमन शिफ्ट मींस Raman shift, that is the equation which we have already discussed it, कि आपकी एनर्जी लेवल के बीच में कितना गैप होंगे, that will be मेरा म्यू बार बराबर है 2b into 2J plus 3, जो कि हमने अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, निकाला हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे J का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, if I will substitute the value of J here, that it J can be 0, J can be 1, J can be 2, J can be 3, J can be 4 and so on। अब अगर मैं J का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, then what will be the value of mu bar is, अगर मैं यहाँ पे J is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 into 0 0 हो गया, यहाँ पे मेरे पास 3 बचा और 2 बचा, 3 to 6, then I have 6b centimeter inverse। Similarly, if I will substitute the value of J is equal to 1 here, then 2 into 1, 2, 2 plus 3 is 5, 5 into 2 is 10b, 10b। Similarly, if I will substitute the value of J2, then 2 to 4, 4, 3 कितना हुआ? 12, 12 plus 2 is 14b। Similarly, अगर 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मेरा बन जाएगा 3 to 6, 6 plus 3, 7 is 9, 9 into 2 is 18b, and then if I substitute 4, then what will be? This will be 22b and so on। तो जितना आप J का वैल्यू बढ़ाएंगे उतना आपके म्यू बार, दैट इज द वेव नंबर, दैट इज रमन शिफ्ट का वैल्यू भी बढ़ेंगे। आप इन दोनों को यूज करके मैं अपना रमन स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकता हूं। आपको रमन जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम है ऐसा कुछ आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो आपका सबसे सेंटर पे जो लाइन मिलेंगे वो आपका मिलेंगे म्यू बार EX, एक्साइटेशन रेडिएशन का, एंड ऑन द राइट साइड में आपका कौन सा लाइंस मिलेंगे? On the right you will get the anti-stock lines। आपका इस राइट साइड में क्या मिलेंगे?
एंटी स्टॉक लाइंस मिलेंगे इस तरह, ये आपका एंटी स्टॉक लाइंस हुआ, देन दिस विल डिक्रीज एंड डिक्रीज। लेफ्ट साइड में आपका मिलेंगे यहाँ पे यू विल गेट द स्टॉक लाइंस, स्टॉक लाइंस। तो इस तरह आगे जाते जाते आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होते हैं। तो दिस इज जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस होगा तो इस साइड आएंगे, दैट इज आवर एंटी स्टॉक्स लाइंस, और इस साइड में आपका आएगा स्टॉक्स लाइंस। तो इस तरह आपको रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम रमन शिफ्ट की बात करते हैं, यहाँ पे एक्साइटेशन लाइन से जब आप J0 पुट करते हैं तो आपका जो रमन शिफ्ट है वो 6B मिलते हैं। इट मींस आपका एक्साइटेशन और फर्स्ट लाइन के बीच में जो गैप होंगे वो अकॉर्डिंग टू 6B बनेंगे, 6B। अब आगे जब भी हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर इन दोनों की डिफरेंस निकालते हैं तो इट इज 4B इन दोनों का निकालेंगे, इट इज 4B इन दोनों का निकालेंगे, इट इज 4B अगेन, इट इज इन दोनों का 4B, और आगे भी आप जाएंगे आपका वहां पे भी 4B मिलेंगे। इसका मतलब है इसके बाद जितने भी लाइंस है इन दोनों के बीच में जो गैप होंगे वो 4B के ही होंगे। आपका पहला वाला लाइन और एक्साइटेशन के बीच में जो गैप बनेंगे वो 6B के होंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी लाइन है उनके बीच में जो गैप बनेंगे वो 4B के बनेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब ये आपका ये हुआ रोटेशनल ट्रांसैक्शन अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, दैट इज डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2। इसके बाद हमने रमन शिफ्ट निकाला कि लाइन के बीच में कितने गैप हो सकते हैं, वो हमारा 6B है जो जब J इज इक्वल टू 0 है, जो कि आपके रिले स्कैटरिंग को बताते हैं। इसके बाद लाइनों के बीच में आपका गैप जो है 4B के गैप होंगे। अब ये एक चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि पहला लाइन और एक्साइटेशन के बीच में जो गैप होंगे वो आपका 2B के 6B के हैं, और इसके आगे जो भी लाइन है वो सब क्या है आपका 4B के बराबर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका पहला लाइन का गैप जो है 6B है, दैट इज व्हेन योर J इज इक्वल टू 0 इट इज 6B, एंड देन आफ्टर ऑन 1 2 3 द गैप बिटवीन द रेस्पेक्टिव लाइंस आर 4B। एक तो आपने यहाँ पे रमन शिफ्ट आपने निकाला। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइन है वो भी डिफरेंट है। ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइंस आर डिफरेंट। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइंस आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये थोड़ा छोटा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके और भी बढ़ रहा है, देन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। उसी तरह इस साइड भी बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे पैटर्न फॉलो अप हो रहे हैं। देन व्हाई दिस इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइंस आर डिफरिंग? The intensity of the lines are differing because we know that the population of the molecule in these lines, these rotational energy levels are different. So जैसे ही आपका रोटेशनल लाइन के बीच में जो पॉपुलेशन डिफरेंस है उसी की बेसिस पे आपका इंटेंसिटी भी मिलेंगे। जितना पॉपुलेशन होगा उतना ट्रांसैक्शन ज्यादा होगा तो उतना इंटेंसिटी भी मिलेंगे। तो सिमिलरली आपका डाउनवर्ड ट्रांसैक्शन भी, इट मींस आपका यहाँ से जब 0 से 2 में जाते हैं तब भी उसका प्रोबेबिलिटी उतना है जब 2 से 0 में आते हैं। तो दोनों साइड आपका लाइन का जो इंटेंसिटी है स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन दोनों का बराबर रहेंगे, लेकिन चेंज जो होगा वो जब आप रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को चेंज करेंगे तो वहां पे आपको लाइंस की इंटेंसिटी भी डिफर करेंगे। सो यहाँ पे दूसरा चीज क्या है कि वो अपवर्ड मींस 0 से 2 में जाना है, एंड डाउनवर्ड मींस हायर टू लोअर में आना। बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रांजैक्शंस आर इक्वली प्रोबेबल। दैट्स व्हाई आपका एंटी स्टॉक लाइंस का इंटेंसिटी भी इतना है, स्टॉक लाइंस का इंटेंसिटी भी इतना है। एंटी स्टॉक लाइंस व्हेन योर डेल्टा जे इज इक्वल टू +2, स्टॉक लेंस व्हेन योर डेल्टा जे इज इक्वल टू -2। जब आपका लोअर से अपर में जाएंगे वो आपको एंटी स्टॉक लाइंस देंगे, इसीलिए उनका वेव नंबर भी ज्यादा है।
यहाँ पे ये वेव नंबर है, इस साइड ये बढ़ रहा है, इससे ये कम हो रहे हैं। तो जब आपका ऊपर से नीचे वाले एनर्जी लेवल में आएंगे तो आपको मिलेंगे स्टॉक लाइन। तो ये था आपका कैसे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम बनता है फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल। Now the important point here is we can say that for any diatomic molecule, or I can say light triatomic molecule, the rotational spectrum can be normally resolved. आपके पास या कोई भी आपके पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है लीनर, या कोई छोटा सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उनके लिए आप रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम और आप रिजॉल्व कर सकते हैं, या उनकी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जब आप उनकी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम को आप रिजॉल्व करेंगे, देन फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ बी। हमारे पास जो इक्वेशन था उससे हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास था वेव नंबर के लिए म्यू बार इज इक्वल टू म्यू बार एक्साइटेशन ई एक्स माइनस देन वी हैव 2b इंटू 2j प्लस 3 प्लस और माइनस। सो इस इक्वेशन से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। देन वंस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, आपके पास जब एक बार b का वैल्यू आ जाते हैं, we know that we can calculate the value of I, that is movement of inertia। हमारे पास ऑलरेडी कुछ इक्वेशन है कि जब आपका बी का वैल्यू निकालते हैं आप आई निकाल सकते हैं, और जब आप आई निकालेंगे आप बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं। नाउ कैसे आप निकालेंगे? वी हैव द इक्वेशन वेयर बी इज इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। अब आपको पता है I is the moment of inertia, C is constant, pi is constant, h is constant। जब आपको B का वैल्यू पता होगा, यहाँ से आप इस I को निकाल सकते हैं, moment of inertia। And we also know that this I is equal to mu r square इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार जब आपके पास I का वैल्यू निकल आते हैं, तो आप इस आर स्क्वायर इक्विलिब्रियम दैट इज द बॉन्ड लेंथ, इसको आप निकाल सकते हैं। देन म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, आपको मॉलिक्यूल के बारे में पता है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप यहाँ से म्यू आपको पता है, आई आपको पता है, आप आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, दैट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो ही आपका बी का वैल्यू निकाल आते हैं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं उस मॉलिक्यूल का, और आपकी बॉन्ड लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। Then what is the important application of our rotational Raman spectroscopy? इसका सबसे बड़ा important application क्या है कि अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, if you have any होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर आपके पास कोई भी होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल आपके पास H2 है, O2 है, ठीक है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने बताया था कि these homonuclear diatomic molecules are माइक्रोवेव इनएक्टिव। ये माइक्रोवेव इनएक्टिव हैं। आप माइक्रोवेव में होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रम आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए परमानेंट डाइपोल होना जरूरी है, लेकिन आपकी होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई भी डाइपोल नहीं होते हैं, परमानेंट डाइपोल, नो परमानेंट डाइपोल। अब क्या होगा? जब आपका परमानेंट डाइपोल नहीं होगा, वो आपका स्पेक्ट्रम नहीं दिखा पाएंगे। जब आपका स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएंगे, देन आपका यू कैन नॉट कैलकुलेट द बॉन्ड length of such molecules, that is homonuclear diatomic molecule. But in case of rotational Raman spectrum, you can get the rotational Raman spectrum of such homonuclear diatomic molecule. So you can get the rotational Raman spectra of
such homonuclear diatomic molecule. आप ऐसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि आपकी माइक्रोवेव इनएक्टिव था, आप ऐसे मॉलिक्यूल की रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप इनकी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप ऐसे मॉलिक्यूल की यू कैन डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ ऑफ सच मॉलिक्यूल। तो ये आपका ब्यूटी है कि आप रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था कि वो क्या था, इनएक्टिव था। तो ये आपका यहाँ पे फायदा देता। सो नाउ आई कैन राइट हियर दैट, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि the rotational Raman spectroscopy or spectrum provides a method for the determination of the bond length of homonuclear molecules. अब मेरे पास रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम का फायदा क्या है? रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम मुझे एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिसमें मैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक या लाइट ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकता हूं। अदरवाइज रोटेशनल स्पेक्ट्रम ने मुझे ये क्लियरली बताया था कि आपका होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होमोन्यूक्लियर में आपका कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होते हैं। जब वो डाइपोल मूवमेंट नहीं दिखाएंगे तो वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। सो यहाँ पे आपको ये फायदा मिल रहा है कि जब आप रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो आप होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और लाइट ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं और स्पेक्ट्रम से आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इफ द मॉलिक्यूल इज सेंट्रोसिमेट्रिक, if your diatomic molecule or your light triatomic molecule is centrosymmetric, जैसे कि आपका H2 है, O2 है, CO2 है। What we mean by centrosymmetric, if the molecule has center of symmetry, अगर आपकी कोई मॉलिक्यूल है डायएटॉमिक है या लाइट ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर वो सेंट्रोसिमेट्रिक हैं, फॉर एग्जांपल आवर HH, तो ये सेंटर से दोनों साइड क्या है, बराबर है H, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, दिस मॉलिक्यूल्स है सेंटर ऑफ सिमेट्री। देन इन दैट केस द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन arises, or I can say the effect of nuclear spin observed will be observed. So in such molecules in which we have the center of symmetry, the nuclear spin effect is observed. Then let's see what we mean by center. This nuclear spin is observed. Then what will happen on the spectrum? Now, if the molecule is, I can say, yeah, for the molecule having I is not equal to 0. I is our nuclear spin. आपने NMR में ये देखा होगा, I is the nuclear spin. For example, the example is our H2
मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन में आपका I इज नॉट इक्वल टू 0, आपका जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन है वो 0 के बराबर नहीं होते हैं। तो अगर आपकी मॉलिक्यूल में I 0 के बराबर नहीं होंगे, then what will be the effect of this nuclear spin is the spectral lines, then the spectral lines show an alteration of intensity। अगर आपकी सेंट्रोसिमेटिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें आपका न्यूक्लियर स्पिन 0 के बराबर नहीं है, इट कैन बी 1/2, इट कैन बी एनी अदर वैल्यूज, देन there will be some alteration in the intensity of this spectral line will be observed, and that effect is known as nuclear spin effect. Now the other case is when the molecule is having I is equal to 0. The example is our O2 molecule. ऑक्सीजन में आपका नेट जो न्यूक्लियर स्पिन मूवमेंट है वो 0 के बराबर होते हैं। If the I is equal to 0, then what will be the effect of nuclear spin is that in this case the energy levels with, ये याद रखना है, even values of J means J is equal to 0, J is equal to 2, J is equal to 4, J is equal to 6 etc. तो यहाँ पे हमें सिर्फ इवन वैल्यूज को देखना है। तो अगर आपकी मॉलिक्यूल सेंट्रोसिमेट्रिक है, सेंट्रोसिमेट्रिक के साथ साथ अगर वहां पे न्यूक्लियर स्पिन 0 के बराबर होते हैं, then in that case your energy levels with even value of J will be missing। आपकी स्पेक्ट्रम में इवन J के इवन वैल्यू वाले सारे एनर्जी लेवल्स वहां पे क्या होंगे, मिसिंग होंगे। thus we can say, thus the alternatives, I can say alternate, not alternatives, alternate lines will be मिसिंग। आपकी स्पेक्ट्रम में हर एक लाइन वहां पे मिसिंग होगा। 0 आपका मिसिंग होगा, 1 प्रेजेंट होंगे, 2 मिसिंग होगा, 3 आपका प्रेजेंट होंगे, 4 मिसिंग होगा। तो आपके सारे इवन वाले लाइंस क्या होंगे, मिसिंग होंगे। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रम एंड द गैप, इसकी वजह से आपकी गैप किसके बीच में, बिटवीन द सक्सेसिव लाइंस इज क्या, कितने होंगे, 8B होंगे इंस्टेड ऑफ हमारे पास क्या था, 4B। आपकी जो लाइन के बीच में हमारे पास जो गैप था वो पहले 4B थे, अब इसकी वजह से आपका न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट की वजह से आपका क्या होगा, वो वाला गैप आपका 4B होंगे इंस्टेड ऑफ योर, कितना था पहले 8B, 4B की जगह अब वो इंक्रीज होके 8B होंगे। अब ऐसे में इसको दिखा सकता हूं कि अगर ये आपका ओरिजिनल आपका स्पेक्ट्रम है, ओरिजिनल स्पेक्ट्रम में हमारे पास ये था, हमारे पास जो आपका एक्साइटिंग लाइन के लिए हमारे पास लाइन था, इसके बाद 0 1 2 इस तरह था, 3 4, इसी तरह आपका एंटी स्टॉक लाइंस भी 0 1 2, then we have 3, then we have 4 and so on। ये मेरा म्यू बार एक्साइट था, ये 0 1 2 3 4, then 0 1 2 3 4, ये हमारा स्टॉक लेंथ। अब आपकी न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट क्या होगा, व्हेन यूर I इज इक्वल टू 0, आपका यही स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, यही स्पेक्ट्रम सेंटर में आपका एक्साइटिंग रेडिएशन होगा, म्यू बार एक्साइटेशन। अब आपका क्या होगा, ये 0 वाला लाइन मिस होगा, 1 वाला लाइन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 वाला मिस होगा, यहाँ पे 3 लाइन प्रेजेंट होंगे, 4 मिस होगा, यहाँ पे 5 लाइन प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली वही केस आपका एंटी स्टॉक वाले लाइंस पे भी यही होंगे। नाउ आई कैन राइट हियर
0 नहीं होगा, 1 होंगे, 2 नहीं होगा, 3 होंगे, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होंगे, 1 3 5। इट मींस आपका जितने भी इवन वैल्यू वाले लाइंस थे वो सब मिसिंग होंगे। तो इसकी वजह से आपका ये पहले 1 to 2 के बीच में 4 था, 4 to 3 के बीच में कितना थे आपका, यहाँ पे भी आपका 4 4 था, तो ये दोनों मिलके आपका 8b बनेंगे। इन दोनों के बीच में भी आपका गैप 8b बनेंगे, यहाँ पे भी आपका ये 8b बनेंगे और ये भी आपका 8b बनेंगे, 8b बनेंगे। तो इस तरह आपका स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में आपका गैप बढ़ जाएंगे। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि if your molecule is centrosymmetric, then the nuclear spin effect will be observed। तो अगर आपकी न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन में है, तो आपकी सिर्फ इंटेंसिटी में ही अल्टरेशन आपको देखने को मिलेंगे स्पेक्ट्रम में। अगर आपकी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें आपका न्यूक्लियर स्पिन 0 के बराबर है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, इन दैट केस your all the value of J which is even will be missing from your spectrum. Then the gap between the respective lines will be increased to 8b instead of 4b, जो कि हमारे पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रम यहाँ पे है। इनके बीच में हमारे पास कितना था, सिर्फ 4b का डिस्टेंस था, इनके बीच में 4b, उसी तरह इस साइड भी आपका 4b था। अब ये 4b अल्टरनेटिव इवन वाला लाइन हट के आपके इस तरह 8b मिलेंगे। तो ये था आपकी लीनियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में और लाइट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। जब आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैवी होंगे तो उनका रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल होते हैं। तो हम अपना जो स्टडी है वो सिर्फ लाइट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और डाई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल पे ही रखें। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ लीनियर diatomic and light triatomic model. ठीक है, so that's all for today. Thank you very much.